Now, today, let's start with chapter number first, evolution of computer. So, in this chapter, we will study about evolution of computers and what are the different generation characteristics of computer and limitation. So, what the students are saying, dear teachers, wonder how computer actually came into being. So, now these amazing machines were invented. Who created them? So, what teacher is saying, dear students, in this chapter, we shall learn about evolution of computers and their classification across the generation. So let's start with the chapter now. So there had been many contribution for the development of computer. Of course, this development did not happen once. There were various stages across several years. So today where we have computers so small that they can hold in palms, but earlier वो बहुत बड़े बड़े होते थे. So evolution of computer. Computer came from the word compute, which means to count or to calculate. So first is abacus. 5,000 years ago, abacus was the first calculating device, which is used to do simple calculation like addition and subtraction. Right? Then we have Napier born 1550 to 1617. It was invented by John Napier, a Scottish mathematician. थे. By this you can do multiplication of table. Right? यहाँ पे ऐसे wooden strips और bones होते थे. No, there are 9 different bones और strips with numbers marked on them. और उन पे जो numbers हैं वो marked होते थे. Then we have Pascal in 1642. It was invented by Blaise Pascal in 1640. It is a mechanical calculator which is used for the purpose of addition and subtraction. Right? After crunching the handle, answers appear on the window. Then we have analytical engine 1833. So we can say that it is an important step in history of computer, which was with which there was a fully automatic calculating machine which was invented by designed by Charles Babbage, who is known as father of the computer. ये different mathematical calculation के लिए हम लेके आए थे. Then we have tabulating machine. So in 1830, Herman Hollerith invented tabulating machine to process data or for US census. US में census होना था उसके लिए लेके आया जाए. And here punch on the card later Hollerith machine become very useful. यहाँ पे different statistical applications का हम use करने लगे. So in February 1942, company changes name to IBM, International Business Machine. Then let's study about the generation. It is refers to the period from which computer changes its characteristics. So we can say with the first generation of computer where we have used vacuum tubes. So टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज करी गई वो वैक्यूम ट्यूब्स थे सर्किट्स में और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज किए थे मेमोरी के लिए. साइज जैसे एक बड़ा रूम हो गया. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की. इनपुट में इसके पंच कार्ड पेपर टेप स्विचेस थे. देयर वाज नो कीबोर्ड्स. आउटपुट प्रिंट आउट थे. अगर हम बात करें फीचर्स की, ये एक्सपेंसिव था, इमेंस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था और जो जनरेशन था हीट का वो एक बहुत बड़े अमाउंट में था. एग्जाम्पल आपका यूनिएक, एनिएक, यूनिवैक, ये क्या है आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं. देन वी हैव सेकंड जनरेशन जो 56 से 16 तक रहा. इसमें ट्रांजिस्टर का हमने यूज करा. टेक्नोलॉजी क्या थी? ट्रांजिस्टर मैग्नेटिक. मैग्नेटिक टिप्स एंड डिस्क वर ऑल्सो यूज. साइज थोड़ा छोटा हो गया था स्मॉल रूम के हिसाब से. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें असेंबली लैंग्वेज और हाई लैंग्वेजेस जैसे कोबोल और फॉल्टन का भी हमने यूज करा. इनपुट और आउटपुट की बात करें कीबोर्ड, डिस्प्ले और मॉनिटर. फीचर स्मॉलर, फास्टर, चीपर, मोर एनर्जी एफिशिएंट, रिलायबल लाइक IBM. देन वी हैव थर्ड जनरेशन 64 to 71. इसमें हम ICs इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करें. राइट? एक ये क्या थी सिलिकॉन चिप्स जो थी उनको यूज करा गया. मॉडुलर कुड बी केप्ट ऑन डेस्कटॉप. यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करें जैसे सी, पास्कल. इफ यू टॉक अबाउट इनपुट आउटपुट कीबोर्ड, डिस्प्ले ऑन मॉनिटर इज यूज्ड. फीचर्स क्या है? देखो एक तो छोटा है, स्मॉलर है, फास्टर है, स्लीपर. राइट? लाइक PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 316, IBM 370. Then we have fourth generation from 1971 से present. VLSI microprocessor, very small, very large. Technology, thousands of integrated circuits built into single microprocessor. Computers can connect it with the wireless network also. If we talk about size, smaller है, could be kept on desktop.
लैपटॉप, नोटबुक, हैंडल है। प्रोग्रामिंग हाई लैंग्वेज, ट्रिपल सी, जावा, पाइथन हमने इसमें यूज करी है लैंग्वेज। देन आउटपुट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ऑल दीज आर यूज्ड। फीचर क्या, एक तो स्मॉलर है, फास्टर है, चीपर, राइट, और ह्यूज डाटा स्टोरेज लाइक IBM PC, एप्पल, मैक, Macintosh एंड कंपनी PC। नाउ फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट है, बियॉन्ड है, इसमें हमने AI का यूज करा है। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर्स, हेयर कुड लर्न एंड रिस्पॉन्ड, जैसे ह्यूमन बीइंग लर्न करते रिस्पॉन्ड करते ऐसे कर सकता है, राइट। इसमें आपकी मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है, लाइक फेस रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन, रोबोटिक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ह्यूमन लाइक ह्यूमन डू, सेल्फ लर्निंग, राइट। सो मेजर टेक्नोलॉजीज आर यूज, लाइक इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर और फिर AI। दीज आर द डिफरेंट 5 जनरेशन, जैसे जैसे क्या हुई है टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। लेट्स स्टडी अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज कंप्यूटर आर फास्ट, जो इनकी स्पीड है वो बहुत तेज है, ये मिलियन ऑफ सेकेंड में सोच के काम कर लेते हैं, राइट। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज करा गया है। कंप्यूटर डू नॉट गूफ्स अप, मतलब उनकी जो एक्यूरेसी है वो हमेशा आपको सही रिजल्ट देंगे, कभी कोई मिस्टेक नहीं देंगे। अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन गलत दे रहे हैं, देन ओनली इट विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट, अदरवाइज इट विल नॉट। कंप्यूटर आर एफिशिएंट, मतलब दे आर वर्सेटाइल, दे कैन डू वेराइटी ऑफ टास्क एट द सेम टाइम, राइट। If you want to play music, you can play music also and play games also. You can paint also, different tasks you can perform. Computer are tireless, मतलब वो diligent होते हैं, they work for a long hours and they do not get tired. But we human beings, after doing the work for a long hours, we get tired. Right? Then computer stored lot of data. जो इनकी storage capacity है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, और हम लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं, राइट। कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक, they are automatic, they can controls, like they can use multiple pages print out, right, automatically वो work करते हैं। computers are programmable, they need a task to be done regularly, वो अपने programs को regularly करते हैं, right, and they use several instruction again and again, and we just need to run the program, like calculating the grades of all the students, computer programs को अपने आप करने लगेगा। then limitations, लाइक कंप्यूटर डू नॉट हैव सेल्फ इंटेलिजेंस, मतलब वो अपने आप काम नहीं कर सकता, ह्यूमंस को उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, तभी वो क्या करता है, वर्क करता है। कंप्यूटर कैन नॉट लर्न, वो अपने नॉलेज को रिटेन नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता। कंप्यूटर कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशंस, भाई अब हम हैं, हम थक जाते हैं तो हमें बहुत टायर्डनेस फील होती है, तो हमारे ये तो पेन होने लग जाता है, तो हम अपने इमोशंस को बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी इमोशन। कंप्यूटर नीड ह्यूमन केयर, ठीक है, आपको उसको मेंटेन रखना, उसको माल फंक्शंस नहीं करना, उसको स्पॉइल नहीं करना। इन कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन प्रोसेस एंटायरली, मतलब आप ऑटोमेटिक हट का आप यूज कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, ऐसा नहीं आप उसको प्रॉपरली यूज करोगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज, वी हैव क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी और सुपर कंप्यूटर। सो फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर, जैसे आपका नेम है सुपर, से आपको सजेस्ट हो रहा है कि वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। So they are used for special purpose, handle complex scientific, statistic और applications programs। फीचर्स क्या है, दे आर वेरी हाई लेवल, दे यूज वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हाई मेमोरी कैपेसिटी है, डाटा प्रोसेसिंग अल्ट्रा फास्ट है, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का ये यूज करते हैं, राइट, लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग। एंड कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 3 मिलियन टू 5 मिलियन, जैसे परम, यूवल, टाटा एका, ये सारे क्या है, आपके सुपर कंप्यूटर है। ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें, दे आर हाईली, दे रिक्वायर्स हाईली क्वालिफाइड स्टाफ्स, एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड, में आपके एक्सपर्ट की जरूरत होगी, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉन पोर्टेबल, और इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है, ये इनकी डिसएडवांटेज। इफ वी टॉक अबाउट मेन फ्रेम, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लार्ज कंप्यूटर है, ये हैंडल करते हैं मेनी यूजर्स एट अ टाइम, और जो इनके टर्मिनल्स होते हैं, इनका हम यूज करते हैं टू कनेक्ट यूजर टू दिस कंप्यूटर। And what do user do? They submit their tasks through terminals. On what are terminal? It is a device which has keyboard and the screen. Features क्या है? एक तो small in size है, large memory capacity है, ये 100 टर्मिनल्स तक नेटवर्किंग को अलाउ करता है, कॉस्ट जो भी इसके लैक्स में होती है। लाइक ड्रॉबैक्स, एक्सपर्ट और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल की इसमें जरूरत होती है। सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग कंप्यूटर। द मिनी कंप्यूटर, these computer came into existence in 1960. At that time they were very costly, but they were available in low prices also.
Key features: high processing speed, then lower category computer, then supercomputer and mainframe computer. Right? Expensive and large है, mostly used as servers to control network. Right? We have PDP-11, VEX, 7500 Magellan. Now microcomputer. They are used as microprocessor chip जिसे हम CPU कहते हैं. We have two types of these computer like laptop and desktop. Only one user can do these computers at that time. That's why they are also known as personal computer. They are used everywhere like schools, office, shops. Key features: there are smaller than my mini computer. These are high speed computer, cost in thousand, portable in size. They use RAM as primary memory. They support different types of secondary memory. जैसे आप अगर हार्ड डिस्क यूज करना चाहते हैं, डीवीडी, पेन ड्राइव आप यूज कर सकते हैं. Right? So this is all about in this chapter. Now today computer are of different shape. जैसे आपने स्मार्टफोन देखा, डिजिटल कैमरा, wrist watch, GPS system. So we have different types of computer. Now the chapter has been completed. Hope you understood. We will meet in the next class. Thank you.